students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10th, Food for Health. So in this chapter, we shall learn about what are the healthy food items that we consume for our healthy and fit body. All these healthy food items we will discuss in our chapter, and what are the nutrients that we obtain from the healthy food we also discuss in our chapter, and what are the junk foods that we should not consume, that the junk food make us unhealthy and unfit. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 10, Food for Health. Get a start. Take right the food that is healthy and cross the ones that is unhealthy. Now you can identify the healthy foods and the unhealthy food items. You can tick the healthy food item and cross one the unhealthy. First is pizza. Pizza is unhealthy. So cross one. Fresh fruits is healthy. Tick the image. Next is बच्चों नेक्स्ट हमें शो कर रखा है पल्सेस दाल या कोई हमारा सब्जी. So it is a healthy food. So tick the image. Next is noodles. Noodles is unhealthy. So cross the image. Now read the chapter. Food is a substance that is consumed to provide nutritional support for the body. It is fuel for our body. It is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. फूड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल जरूरी होते हैं. फूड हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है. हमारी बॉडी एक मशीन होती है जो पूरे दिन एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहती है. तो जैसे मशीन को फ्यूल की जरूरत होती है वैसे ही हमारी बॉडी को फूड की जरूरत होती है एनर्जी के लिए. बच्चों हमें फूड जो है प्लांट्स ओरिजिन से भी मिलते हैं और एनिमल्स ओरिजिन से भी मिलते हैं. डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से ही मिलते हैं. Now, it gives us energy to do various activities. Most of our food comes from plants and animals. बच्चों हमें फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वही हम एनर्जी रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाते हैं. हमारे फूड के सोर्सेज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ फूड. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सम फूड हेल्प अस टू ग्रो, सम गिव अस एनर्जी एंड सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. बच्चों जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनसे आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. एक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. कुछ फूड से हमें एनर्जी मिलती है, कुछ फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ फूड आइटम्स हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. देयरफॉर foods are classified into three major groups. First is energy giving food, next is body building food and last one is protective food जो आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. Now start with energy giving food. Food that give us energy is called energy giving food. Rice, chapati, potato, butter, cheese, sugar, etc. are some energy giving food items. बच्चों जिन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो आपके एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं. जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पोटैटो, बटर, ये क्या है आपके एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट कैटेगरी इज बॉडी बिल्डिंग फूड. Food that help us to grow and makes our body, bones and muscles strong is called body building food. Milk, eggs, pulses, peas, fish, etc. are some bodybuilding food items. जिन फूड आइटम्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो आप ग्रो करते हैं, आपकी वेट इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, आपकी बोन्स हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो वो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. किनसे आपकी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होती हैं? मिल्क से, दूध पीना चाहिए. पल्सेस, हमें दालें खानी चाहिए, और पीस, ये सारे इन सब में क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. Now let's see an amazing fact. Milk and curd contain calcium which makes our bones and teeth healthy and strong. आपको दही खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और teeth strong होंगे. Now next category is protective food. Foods such as fruits, vegetables and nuts are protective foods. They keep away disease and protect us from falling sick. They also keep our body work efficiently. बच्चों कुछ फूड्स होते हैं हमारे जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स. ये हमें डिजीज से बचाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं. बच्चों ये हमें जर्म से अवे रखते हैं, दूर रखते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी एफिशिएंटली वर्क कर पाती है. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? What is called as a complete food? किसे हम complete food कहते हैं? बच्चों मिल्क, दूध एक complete food माना जाता है. Now come to the roughage. Roughage is essential for proper digestion. It helps to get rid of constipation. Fibrous fruits and vegetables are rich sources of roughage such as papaya, guava, carrot, radish, etc. Roughage जो है बहुत जरूरी होता है.
रफेज हमारी डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। जो भी हम सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं ना, उसको बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम रफेज का ही होता है, जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से भी बच जाते हैं। इसलिए बच्चों फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें जरूर खाने चाहिए। इसमें रफेज होता है, जैसे पपाया, गुआवा, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली। नाउ नेक्स्ट इज वाटर. Water is very important for us. It helps us to digest the food. It also helps us to remove waste from the body. We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है। हमारे बॉडी में सारे वेस्ट को रिमूव करने का काम वाटर का ही होता है, इसलिए हमें रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। नाउ water regulates our body temperature by dissipating the heat. Water also boosts the amount of blood in the body and prevent dehydration. अगर आप पानी पियेंगे ना बच्चों, इससे ना आपकी जो हीट है डिसिपेट होती रहेगी, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड लगेगी आपको। आपकी ब्लड का अमाउंट जो है आसानी से बूस्ट होता रहेगा, सारे ही पार्ट्स तक आसानी से सप्लाई होगा और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड भी नहीं होगी। Now students, let's become a champ and write down the names of food necessary for. First, growth के लिए कौन से foods necessary होते हैं? ग्रोथ के लिए हमें क्या ईट करना चाहिए? मिल्क, दूध पीना चाहिए। एग, फिश, बीन्स भी आप लिख सकते हैं। एनर्जी किससे मिलती है बच्चों में? राइस, चपाती, घी और बटर भी होता है। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ कौन मेंटेन करता है बच्चों हमारे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, पल्सेस भी लिख सकते हैं आप। and examples you can write here. Now let's start with the topic meals. A meal is the food that we eat at a fixed time every day at proper interval. We should have at least 3 major meals in a day: breakfast, lunch and dinner. बच्चों मील वो फूड होता है जो हम फिक्स टाइम में ईट करते हैं, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल इसका बंधा होता है। बच्चों हम दिन में 3 बार मील लेते हैं। फर्स्ट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इन द नून लंच एंड एट द नाइट डिनर. Now let's see an amazing fact. The main food or of a region is called its staple food. Rice is the staple food of nearly half of the world. मेन फूड किसी भी प्लेस का, रीजन का जो मेन फूड होता है, जहाँ के वो स्पेशलिटी होती है, उसे हम स्टेपल फूड कहते हैं। राइस जो है बच्चों ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रीजन्स में राइस जो है स्टेपल फूड है। नाउ लेट्स सी द गुड ईटिंग हैबिट्स. फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. आपको हमेशा फ्रेश, ताजा और क्लीन फूड ही खाना चाहिए। ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द प्रॉपर अमाउंट. आपको हर तरीके का फूड आइटम्स को ईट करना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको हाथ धोने चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल. आपको धीरे धीरे चबा के खाना खाना चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ईट करने चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जस्ट लाइक कोक्स, पिज्जा. ट्राई नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग. जब भी आप खाना खाएंगे तो बात नहीं करेंगे। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे. हमें रोज 8 से 10 ग्लासेस पानी पीने चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. बच्चों आपको माउथ का अच्छे से रिंस करना चाहिए क्लीन वाटर से. Now students, let's see new words. First word is energy. That means the ability to be very active. Energy means एक ability, एक क्षमता जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है, थकने से बचाती है. Next is meal means food that we eat at a certain time of the day. मील मतलब वो फूड आइटम जो हम एक फिक्स टाइम इंटरवल में कंज्यूम करते हैं, वो हमारा मील होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, पोटैटो, चपाती, राइस एक्सेट्रा गिव अस एनर्जी. पोटैटो, चपाती, राइस से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, हमारे एनर्जी गिविंग फूड है. प्रोटेक्टिव फूड्स कीप आवर बॉडी वर्क एफिशिएंटली. प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते हैं हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड. वाटर जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. वी ईट 3 मील्स इन अ डे. बच्चों हम दिन में 3 बार मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमें हमेशा साफ खाना ही खाना चाहिए और फ्रेश, ताज़ा. Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Take write the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, fruits and vegetables. सात fruits और vegetables बच्चों ये कौन से foods होते हैं? हमारे protective food जो हमें disease से protect करते हैं. A is the right answer. It is a body building food. Body building food कौन सा होता है बच्चों इसमें, जो body build up करने में help करता है? B, milk.
नेक्स्ट, गुड फूड कीपर्स, गुड फूड हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है, बी इज द राइट आंसर. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, बी इज द राइट आंसर. द फूड दैट वी ईट एट अ फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड मील, ए इज द राइट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, let's do exercise B and list the food in correct columns. Now you can enlist all the food items according to their each groups. First is energy giving food, next is bodybuilding and last one is protective. First is energy giving food. अब हम स्टार्ट करते हैं एग से. एग कैसे होता है, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है. नेक्स्ट, ग्रेप्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं. जूस बच्चों ये भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, जूस से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट, बटर बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है. नेक्स्ट, पल्सेस एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं. शुगर बच्चों ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड में आता है. मिल्क बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है. चपाती एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं. पाइनएप्पल प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं. नेक्स्ट इज वॉलनट बच्चों, वॉलनट जो है हमारे नट्स जो है प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स. नेक्स्ट, पीस हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज सी. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First is, we get energy from the dash we eat. We get the energy from the food we eat. Food help us to dash and stay dash and dash. Second में हम fill करेंगे food help us to grow and stay active and healthy. Next is, we should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Always eat dash and dash food. Always eat fresh and clean food. Next, eat dash and dash the food well. Eat slowly. हमें धीरे धीरे फूड ईट करना चाहिए. Eat slowly and chew the food well. और चबा के खाना चाहिए. Now students, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. Now you can read this statement and identify true and false one. First, milk and eggs are bodybuilding food. Yes, it is true. We eat 3 meals in a day. Yes, it is true. Water is very important for us. Yes, it is also true. We also eat junk food. क्या हमें junk food खाना चाहिए? No. Avoid junk food. It make our body unhealthy. So it is false. We should talk while eating food. क्या हमें खाना खाते हुए बात करनी चाहिए? No, it is a bad habit. So it is false. Now, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.